हमने टेस्ट करना है वो है यूरिया टेस्ट। यूरिया टेस्ट हम किस लिए करते हैं? यूरिया टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द any cause of kidney damage or kidney disease. So if we have a kidney disease, then the urea level get increased and in blood. If it is increased in blood, it is known as uremia, and if it is increased in the urine, it is always present in urine, so there is no name in the urine. So in blood it is increased when there is a problem in a kidney. What is the principle of this reaction? Urea is converted into endophenol ring, which gives maximum absorption at 600 nanometer. So, what are the reagent required? There are three reagent bottles which are used in the urea detection. One reagent bottle contain urease enzyme with more than 500 unit per ml. And second reagent bottle contain buffers and stabilizing agents, phosphate buffer, EDTA, sodium salicylate, sodium nitroxide. It gives color to the ammonia when it binds to the salicylate and sodium hypochlorite. And reagent 3 contain alkaline hypochlorite, means sodium hypochlorite and sodium hydroxide. And there is fourth bottle which is very small, which contain urea standard, which contain 50 milligram per deciliter, which is equivalent to 8.3 millimole per liter. So uh, store all the kit reagent bottles at 2 to 8 degrees centigrade for around 2 to 3 months. And if you want to store for long period, then you have to store in a freezing temperature. But it is better to use kit within a week or within a month. How we can prepare a reagent, working reagent? These are the reagent bottles, and how we can prepare the working reagent by utilizing these reagent bottles. So we take 1 volume of enzyme and 24 volumes of R2. If we want to analyze 25 samples or 24 samples. It is stable for 4 weeks at 2 to 8 degrees centigrade and for 7 days at 15 to 25 degrees. Why we not added R3? Because it contain alkali, strong alkali, sodium hydroxide, which can denature the enzyme. So we does not add R3 in working reagent directly. So working reagent is produced when one portion of R1 and 25 4 portion of R2 is taken and mixed. ठीक है. Then serum or plasma you have to obtain, or you have to obtain urine sample and check the urea level in urine और इन ब्लड. ठीक है. इसमें अगर आप सीरम सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एंटीकोगुलेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये जो ट्यूब होती है. लेकिन अगर आप प्लाज्मा सेपरेट करना चाहते हैं तो फिर कोई एंटीकोगुलेंट डालना पड़ता है ताकि फाइब्रिनोजन भी ऊपर आ जाए. फाइब्रिनोजन जो है वो भी ऊपर आ जाए तो वो प्लाज्मा होगा. तो ये 7 दिन तक 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर कर सकते हैं सीरम या प्लाज्मा को. लेकिन अगर लंबे अरसे तक 3 से 4 माह तक सेव करना है आपने, तो उसके लिए आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा. आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर पे सेट करनी है. अगर सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर पे काम करना है तो तब भी उसकी वेवलेंथ 600
नैनोमीटर सेट करनी है। ठीक है, टेम्परेचर उसको कांस्टेंट देना है, या 30 हो गया या 37 डिग्री क्यूवर्ड्स विद 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ उसकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सारी रीजेंट्स और सैंपल और स्टैंडर्ड को रूम टेम्परेचर पे ला के आधा घंटा रख देना है। फिर आपने 3 ट्यूब्स लेनी है। ठीक है, 3 ट्यूब्स या 3 क्यूवर्ट्स लेनी है, एक को ब्लैंक कोड कर देना है, एक को स्टैंडर्ड, एक को सैंपल। तीनों में आपने वर्किंग रीजन जो आपने 24 पोर्शन R2 और 1 पोर्शन R1 लिया है, तीनों में आपने 1 ml वो डाल देना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड में क्या होगा, ब्लैंक वाले में आप 10 ml डिस्टिल वाटर डाल देंगे, स्टैंडर्ड वाले में 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डाल देंगे, और सैंपल वाली में 10 माइक्रोलीटर सैंपल डाल देंगे। आपने उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद आपने जब यूरिएज अपना फंक्शन कर जाएगा, यानी कि वो अपना 5 या 10 मिनट में अपना फंक्शन कर लेगा, अमोनिया प्रोड्यूस कर देगा, फिर आपने रीजेंट जिसमें अल्कली है, स्ट्रांग अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, फिर आपने उसमें 1 ml वो डालना है ताकि कम्प्लेक्स बने, एंडोफिनोल रिंग बने। ठीक है, और उसकी एब्जॉर्प्शन आपने 578 या 600 नैनोमीटर पे सेट कर लेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, यूरिएज एंजाइम इन बफर की मौजूदगी में यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है यूरिएज एंजाइम की मौजूदगी में। फिर ये जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ये सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम नाइट्रोपोटासाइड के साथ मिलके एंडोफिनोल रिंग बनाती है। ये एंडोफिनोल रिंग 578 या 600 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देती है। जितनी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी उतना यूरिया ज्यादा होगा। तो ये था प्रिंसिपल। आगे लेट्स सपोज कि आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जो है यूरिया को चेक कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो इस तरह से मसलन एब्जॉर्प्शन आई है 0.3, सैंपल की एब्जॉर्प्शन आई है स्टैंडर्ड की 0.3, और आपके स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है क्या है 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो 50 से मल्टीप्लाएंगे तो 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूरिया का लेवल है। तो नॉर्मल क्या है, ह्यूमन के अंदर नॉर्मल क्या है 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो जिनमें यूरिया ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उनको वाटर भी ज़्यादा चाहिए होता है यूरिया को निकालने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। सबसे पहले है प्री रीनल काजेज, यानी कि किडनी से पहले जो काजेज हैं उसमें हाइपोवोल्मिक शॉक है, यानी एक्सीडेंट हुआ है तो सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, या बर्न्स हो गई हैं, या सीवियर अनकंट्रोल गैस्ट्रोएंटराइटिस है, यानी कि ब्लड की लीकेज हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो तब यूरिया का लेवल, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसकी वजह से यूरिया का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ग्रुप एक दूसरे से मैच नहीं हुए और कोगुलेशन हो गई है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, तो तब भी ये यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। सेप्टिक शॉक ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन, जब ज्यादा होती है तो प्रोटीन ज्यादा डैमेज होती है, ज्यादा यूरिया बनता है, तो ज्यादा डाइजेशन होती है प्रोटीन की, ज्यादा यूरिया बनेगा, और ये क्या करेगा यूरिया के लेवल को बढ़ा देगा। आपको पता है जितने भी अमीनो एसिड हैं वो अपना जो अमोनिया है वो यूरिया में चेंज करते हैं यूरिया साइकिल के थ्रू, किसमें, लीवर के अंदर। और अगर कोई लीवर खराब हो जाए फिर अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो हाइपरमोनीमिया हो जाता है। बहरहाल वो तो डिफरेंट है। कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि कोई जो आर्टरी है या पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से या किसी और क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो गई है, तो तब ये यूरिया लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई पॉइजन आ गया है, कोई लेड पॉइजनिंग हो गई है, या कोई हैवी मेटल ले लिया है, तो तब भी इसका लेवल बढ़ जाएगा। कैंसर हो गया है जिसमें वाइट ब्लड सेल जो है क्राउड कर देते हैं, जहाँ पे ये बोन मैरो सेल्स के अंदर जो कैंसर होता है जिसको मल्टी माइलोमा कहते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि इन मल्टी माइलोमा काज द कैंसर सेल टू अकुमुलेट इन द बोन मैरो वेयर दे क्राउड आउट हेल्दी ब्लड सेल्स, वहाँ वो हेल्दी ब्लड सेल्स को घेर लेते हैं। होमोग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि होमोग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम ए डोनर ऑफ द सेम स्पीसीज बट डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, लेकिन दोनों का जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से डिफरेंट है। तो फिर जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा और वो प्रिवेंट करेगा रिजेक्शन ऑफ ए ग्राफ्ट। तो अगर तब भी जो है ना जो प्रोटीन ज़्यादा डाइजेस्ट होगी और क्या होगा, यूरिया ज़्यादा बनेगा। रीनल आर्टरी स्टीनोसिस यानी कि रीनल जो किडनी की आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाए तो तब भी यूरिया ज़्यादा बनता है। रीनल आर्टरी स्टीनोसिस जो ब्लड लेके जाती हैं रीनल पाथवे के अंदर। रीनल काज क्या है, डायबिटीज नेरोपैथी यानी कि ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन की वजह से नेफ्रॉन जो है वो हार्ड हो गई हैं। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, ये भी जो है ना ब्लड प्रेशर की वजह से जो नेफ्रॉन्स हैं उनका हार्ड हो जाना और यूरिया की जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं होती। वेरियस नेफ्रोटिक ड्रग्स लाइक अमीनो ग्लाइकोसाइड ये भी कर देती हैं। और ये डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, यानी ये क्या होती है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन इज ए कंडीशन इन विच ब्लड क्लॉट फॉर्म थ्रू आउट द बॉडी ब्लॉकिंग स्मॉल ब्लड वेसल। तो इसमें स्मॉल ब्लड वेसल जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। पोस्ट रीनल यानी कि रीनल के बाद, किडनी के बाद यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन और स्ट्रिक्चर यानी कि कंस्ट्रिक्ट कर जाना यूरिनरी ट्रैक का, तो तब भी जो यूरिया है वो मूव आगे नहीं करता और यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाते हैं तो तब भी जो है वो यूरिनेशन कम होती है और यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जब यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। अब हम एक वीडियो देखते हैं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूरिया को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड के जरिए। ब्लड यूरिया डिटेक्शन बाय किट मेथड। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हम यूज करके डिफरेंट रीजेंट्स को तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक किट है, ये आप देखेंगे ये मेगाजाइम की किट है। इसमें आप देखें ये रीजेंट बोटल्स हैं, ये सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट प्रोसीजर की तरफ। तो ये प्रिंसिपल है अगर किसी और जगह से आप यूरिया डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये रीजेंट प्रिपरेशन है। इसमें ये तो किसी और जगह से अगर आप अमोनिया यूरिया डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो पहले हम चलते हैं ब्लड से यूरिया की डिटेक्शन कैसे होती है। तो ये है यूरिया एस्टिमेशन, ठीक है।
ये आप देखें, ये आपके पास सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर है। ठीक है, इसने रीजेंट को तैयार करके रखा हुआ है, R1 और R2 को मिक्स किया हुआ है, और R3 भी अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि वेवलेंथ सेट कर दी है। ठीक है, 578 या 600 नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, फिर ये क्या लेगा, 3 क्यूबर्ट्स लेगा उसमें। ये आप उसने ब्लैंक रन किया है। ठीक है, ब्लैंक डिजिटल वाटर उसने रन किया। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये इसने रीडिंग ली हुई है। ठीक है, ये यूरिया की अब्जॉर्प्शन ऑफ टेस्ट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये यूरिया की कैलकुलेशन हम इससे कर सकते हैं। तो 50 क्या है कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, लेट्स सपोज की अब्जॉर्प्शन जो आई है, फिर उसको लिख लेंगे और इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल जो वैल्यू है यूरिया की, वो मैंने आपको बताया 20 to 40 मिलीग्राम पे है, या अगर चिल्ड्रन देखें तो उसमें 11 to 36 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, तो चिल्ड्रन में जो रेंज है वो कम है, एडल्ट में ये 20 to 40 है, और अब अगर एशियन पॉपुलेशन में देखें तो ये 20 to 45 है। तो यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों यूज होते हैं किडनी के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। अगर यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों का लेवल हाई है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि किडनी खराब है। ठीक है, तो फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है बंदे को, और ब्लड को साफ करना पड़ता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ यूरिया और क्रिएटिनिन ये दोनों डेंजरस हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर इनको रिमूव करना है ब्लड। तो यहाँ तो तक हो गया आपका प्रैक्टिकल। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।